Very good morning to all students. Students, this is second part of chapter number 26. The title of this chapter is Direct and Indirect Speech. Student, I have completed exercise A and B in the first part. So, in this part, we will start with exercise number C. So, look at here students properly. Exercise number C, see the instruction. चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे सभी सेंटेंसेस है स्टूडेंट वो डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इट इज़ सेम लाइक एक्सरसाइज बी। ठीक है, नाउ लुक एट हियर। फर्स्ट सेंटेंस, अर्जुन सेड द रूम इज़ नाइस एंड वार्म। As we know the rules students that in indirect speech we don't have to put sentence into inverted comma. We have to remove inverted comma and there we have to add that word. So remember this rule properly. Now look at here, Arjun said that the room, now here is nice is written in the sentence, but if the simple present tense given in direct speech, in indirect speech we have to write past tense. So यहाँ पे is का क्या हो जाएगा, was, nice and warm. So what is answer? Arjun said that the room was nice and warm. Now second sentence, Romila said I am going to Turkey. Now here which way we have to write indirect speech? Romila said that. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखते हो सेंटेंस में आई लिखा है, तो ये तो रोमिला बोल रही है, हमें नहीं जाना है तुर्की, बट हु इज़ गोइंग? रोमिला। सो यहाँ पे हमें आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सी, और एम की जगह वॉज, बिकॉज जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो उसका पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे एम गोइंग है उसका हमें लिखना पड़ेगा वॉज गोइंग टू तुर्की। सो व्हाट इज आंसर? रोमिला सेड दैट शी वॉज गोइंग टू तुर्की। नंबर 3, रेहान सेड कमल इज ए गुड डॉक्टर। Now which way we have to write in indirect speech? Rehan said that. Don't forget to write that. When we remove the inverted comma we have to add this word compulsory that. ठीक है, कमल। now यहाँ पे लिखा है is, तो is का क्या हो जाएगा? was a good doctor. Now I repeat once again student. Rehan said that Kamal was a good doctor. Number 4, Nagma said Vani has bought a scooter. Now Nagma said that Vani यहाँ पे has का क्या हो जाएगा? had bought a scooter. ठीक है, I repeat once again answer. Nagma said that Vani had bought a scooter. Number 5, the guest said the garden looks beautiful. Now which way we have to write in indirect speech? The guest said that the garden, यहाँ पे looks लिखा है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट टेंस। तो looks का क्या हो जाएगा यहाँ पे? looked beautiful. So what is answer? The guest said that the garden looked beautiful. Right? Now next sentence, Lucy said the package has been delivered. Now which is indirect speech? Lucy said that the package, यहाँ पे has been लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? had been. right? had been delivered. फिर अगेन यहाँ पे है इन्वर्टेड कॉमा, बाय मिस्टेक भी हमें नहीं लगाना है। रिमेंबर दिस रूल प्रॉपरली। आई रिपीट वंस अगेन, Lucy said that the package had been delivered. Sentence number 7. Look at here student. Janani said we planted apple trees in our garden. ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच? जनानी सेड दैट, यहाँ पे वी लिखा है तो जनानी
वो बोल रही थी, इसलिए उसने वहाँ पे वी लिखा है, बट हमें वी की जगह यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, दे हैड प्लांटेड, ओके, दे हैड प्लांटेड एप्पल ट्रीज इन आवर गार्डन। जनानी अपने गार्डन की बात कर रही है, तो यहाँ पे हमें अवर नहीं लिखना है, अवर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, देयर। अंडरस्टूड? तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ देयर लिखना पड़ेगा, इन देयर गार्डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब पास्ट टेंस यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका हैड प्लांटेड हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज पर द रूल। सो व्हाट वी हैव टू डू, Janani said that they had planted apple trees in their garden, right? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस दिया है, पास्ट टेंस दिया है, इसलिए यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमें हैड प्लांटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सेंटेंस दिया है, उसका सिंपल पास्ट टेंस दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैड लिखना कंपलसरी है, राइट, इसलिए यहाँ पे हमने हैड ऐड किया है। नंबर 8, द मैजिशियन सेड मैनी पीपल एंजॉयड द शो, ठीक है। ये भी पास्ट टेंस में ही है, तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। द मैजिशियन सेड दैट मैनी पीपल, फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हैड, एंजॉयड का एंजॉयड ही रहेगा, ओके। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंजॉयड द शो, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, द मैजिशियन सेड दैट मैनी पीपल हैड एंजॉयड द शो। नंबर 9, कीर्ति सेड आई एम सेलिंग माई ओल्ड फर्नीचर। Now which way we have to write in indirect speech, कीर्ति said that। फिर यहाँ पे देखो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई एम, क्योंकि वो कीर्ति बोल रही है, बट यहाँ पे हमें आई नहीं लिखना है, आई की जगह कीर्ति इज अ गर्ल, दैट्स वाई हियर वी हैव टू राइट सी। और एम सेलिंग लिखा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एम का यहाँ हो जाएगा वॉज, और सेलिंग का सेलिंग। माई लिखा है, तो कीर्ति अपना सेंटेंस बोल रही थी, इसलिए माई लिखा है, बट हमें क्या लिखना पड़ेगा, हर। माई लिखेंगे तो हमारा फर्नीचर की बात हो जाएगी, हम किसके फर्नीचर की बात कर रहे हैं, कीर्ति की, इसलिए यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा हर ओल्ड फर्नीचर। सो व्हाट इज आंसर, कीर्ति सेड दैट शी वॉज सेलिंग हर ओल्ड फर्नीचर। नंबर 10, My brother said we cannot disobey our parents. My brother said that, यहाँ पे we का क्या हो जाएगा, they, उनके बारे में बात हो रही है ना, इसलिए they यहाँ पे कैन नॉट दिया है, तो कैन नॉट का यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना पड़ता है, कुड नॉट। डिसओबे फिर लिखा है अवर, तो अवर यानी हमारे पेरेंट्स की बात हो जाएगी, बट हम किसके पेरेंट्स की बात कर रही है, ब्रदर के पेरेंट्स की, इसलिए यहाँ पे हमें अवर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, देयर पेरेंट्स, राइट। सो व्हाट इज आंसर, माई ब्रदर सेड दैट दे कुड नॉट डिसओबे देयर पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 to 10 सेंटेंसेस दिए हैं, सभी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स वी हैव टू कंप्लीट। सो these all the sentences you have to write properly with your good handwritings with the help of pencil in given space. I hope students whatever I have discussed that you understood in this exercise. It's a very important exercise, so read properly. Okay, now we are moving towards the next exercise. यहाँ पे exercise D we don't have to take, and even exercise E also we don't have to take. Now see here, one information given, changing commands and requests to indirect speech. अब कोई भी sentences में commands और request का टोन आता है sentences में,
तो हम किस तरह से ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, उसके कंसर्निंग कुछ रूल्स दिए हैं. सो लुक एट हियर, रीड दिस सेंटेंसेस. पारुल सेड प्लीज शट द डोर. ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस को देख के हमें तय करना है कि यहाँ कमांड का टोन है या रिक्वेस्ट का. तो जनरली रिक्वेस्ट टोन में प्लीज़ ऐड किया हुआ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट टोन है. तो ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो उसको हमें इनडायरेक्ट में कैसा करना है, जैसे कि पारुल, फिर सेड की जगह हमें क्या डालना है, रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर. ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ फिर अगेन हमें नहीं लेना है क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है. और इन्वर्टेड कॉमा को हमें रिमूव करना है और वहाँ पे हमें ऐड करना है टू, एंड देन आफ्टर वी हैव टू राइट शट द डोर. नाउ look at the another information given on the next page, page number 1 to 9. When we change commands or requests from direct speech to indirect speech, we use reporting verbs such as told, ordered, commanded, instructed, asked, requested, begged, pleaded and so on. ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ऐसे रिक्वेस्ट टोन या कमांड टोन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में ऐड करते हैं, तब हम रिपोर्टिंग वर्ग में हम ये ऐड करते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट दिया है, टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड एक्सेट्रा. ठीक है, द टीचर सेड, नाउ लुक एट द अनदर एग्जाम्पल. द टीचर सेड बॉयज स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये सेंटेंस का टोन, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का टोन आता है कि टीचर इंस्ट्रक्ट करते हैं सभी बॉयज़ को, यू हैव टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन, आपको सीधी लाइन में खड़े रहना है. तो यहाँ पे हम कैसे उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे, द टीचर, तो यहाँ पे टोन कौन सा है, इंस्ट्रक्शन का, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्ट्रक्टेड द बॉयज़, फिर स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम क्या ऐड करते हैं, टू. हाँ, तो टू कंपल्सरी हमें ऐड करना है, एंड देन वॉट एवर सेंटेंस रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ हमें लिखना है, टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द कमांड चेंजेस टू द इन्फिनेटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच. The word don't in direct speech becomes not to in indirect commands. For example, यहाँ पे आपको दिया है प्लीज़ डोंट मेक ए मैस, मदर टोल्ड सारा. ठीक है, तो यहाँ पे मदर यहाँ रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ लिखा है इसलिए मदर रिक्वेस्टेड सारा. फिर यहाँ डोंट लिखा है, तो डोंट का यहाँ पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, डोंट मेक का नॉट टू मेक, डोंट मेक का हो जाएगा नॉट टू मेक अ मैस. ठीक है, तो इस तरह से डोंट वाले जो भी वर्ड सेंटेंसेस है उसमें हमें नॉट टू ऐड करना पड़ेगा. ओके, नाउ लुक एट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर F. सी द इंस्ट्रक्शन, चेंज दिस कमांड्स एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें कमांड और रिक्वेस्ट का टोन है, वो सब डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं, उनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, डोंट टर्न ऑफ द टीवी प्लीज, रिक्वेस्टेड नेहा. तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखना है, पहले तो सबसे पहले हमें नेहा का नेम लिखना है, सब्जेक्ट. ओके, फिर उसके बाद लिखना है रिक्वेस्टेड मी, फिर यहाँ डोंट लिखा है, तो डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू टर्न द टीवी ऑफ. ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है. दिस फर्स्ट सेंटेंस गिवन एज एन एग्जाम्पल. सी द सेकेंड, फादर टोल्ड मी डोंट प्ले विथ मैचेस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, फादर टोल्ड मी, फिर यहाँ पे डोंट प्ले लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा, नॉट टू प्ले विथ मैचेस, और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखना है, वी हैव टू रिमूव. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, फादर टोल्ड मी not to play with matches. Now number 3, wait for me, Mahua said Susie. I repeat once again, wait for me, Mahua said Susie. So which way we have to write, Susie told Mahua. ठीक है, wait for me, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है, बट हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, टू. ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे? टू वेट फॉर, मी की जगह क्या हो जाएगा? सूजी बोल रही है किसको? महुआ को, तो महुआ इज अ गर्ल, दैट्स वाई हियर वी हैव टू, मी की जगह हमें लिखना पड़ेगा हर. सो व्हाट इज आंसर? सूजी टोल्ड महुआ. ठीक है, यहाँ पे मैंने महुआ शॉर्ट में लिखा है, यू कैन अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. महुआ टू वेट फॉर हर. ठीक है. नंबर 4, प्लीज टेल मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज, द पासर बाय आस्क्ड अर्जुन. तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हो सेंटेंस में प्लीज़ वर्ड यूज़ हुआ है, तो जहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट ऑन दिखाया होता है. ठीक है, तो किस तरह से हम लिखेंगे? द पासर बाय, ठीक है, आस्क की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड अर्जुन. फिर यहाँ लिखा है टेल मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे? टू. टेल मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम. ठीक है, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज की जगह हमें यहाँ पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, तो इज का हो जाता है वॉज. सो व्हाट इज आंसर? द पासर बाय रिक्वेस्टेड अर्जुन टू टेल हिम वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज. ठीक है. नाउ सी द सेंटेंस नंबर 5. टेक मी टू द Ibis होटल, said the traveler to the taxi driver. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का टोन है. ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे द ट्रैवलर इंस्ट्रक्टेड द टैक्सी ड्राइवर. फिर यहाँ पे लिखा है टेक मी टू द Ibis होटल, तो यहाँ पे टू हम ऐड करेंगे इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके. टू टेक, मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि यहाँ कौन है? ट्रैवलर, मे बी अ पर्सन, ही है, मीन्स कोई पर्टिकुलर जेंट्स का, पर्सन का दिखाया है, इसलिए यहाँ पे हम हिम लगाएंगे. ठीक है, हिम टू द Ibis होटल. ठीक है. सो इसी तरह से हमें हर एक सेंटेंसेस में ये रूल फॉलो करके लिखना है. आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स. द ट्रैवलर इंस्ट्रक्टेड द टैक्सी ड्राइवर to take him to the Ibis hotel. ठीक है. नंबर 6, मदर इंस्ट्रक्टेड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. तो यहाँ पे क्लियरली दे दिया है, इंस्ट्रक्शन का टोन है, इसलिए वही हम रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे. मदर इंस्ट्रक्टेड, ओके, अस. यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में डोंट टॉक, तो डोंट का क्या हो जाएगा? नॉट टू टॉक. ओके, to stranger. So what is answer? Mother instructed us not to talk to strangers. Number 7, call me as soon as you reach Chennai, father told me. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? father told me. फिर call me as soon as you reach Chennai, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, इसलिए सबसे पहले कौन सा वर्ड हम ऐड करेंगे? टू. ठीक है, कॉल मी का क्या हो जाएगा? हिम. एज सुन एज, यहाँ पे यू लिखा है. ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा? एज सुन एज, फादर बोल रहे हैं ना, इसलिए आई लिखना पड़ेगा. एज सुन एज आई रीच चेन्नई. ठीक है, सो फादर टोल्ड मी टू कॉल हिम एज सुन एज आई रीच चेन्नई. ठीक है. नाउ नंबर 8, call the ambulance, said Mr. Kapoor to his daughter. Now which way we have to write? Mr. Kapoor, यहाँ said का हो जाएगा told, his daughter. फिर यहाँ पे call the ambulance है, वो inverted comma में लिखा है, तो यहाँ पे हम inverted comma को remove करेंगे. तो सबसे पहले कौन सा वर्ड हम ऐड करेंगे? टू. ठीक है. Two is an infinitive, so here we have to write first two and then after we have to write call the ambulance. So what is answer? Mr. Kapoor told his daughter to call the ambulance. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 to 8 सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ के इसको भी अपने गुड हैंड राइटिंग्स में लिख लेना. सो स्टूडेंट्स, वॉट एवर आई हैव डिस्कस हियर in this part, remaining exercise
that you all understood it properly and you have to write properly in your good handwritings in given space and read properly and try to understand all the rules of this chapter. Thank you. Have a nice day to all of you.